कल हमने देखा था थियरी पार्ट कि स्किन हमारी जो होती है वो किस तरह से खराब हो जाती है और उसके टाइप्स कितने हैं, और दूसरा कि उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि डाइट थ्रू, योग थ्रू एंड ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, राइट। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कल का, तो हम लोग उसका रिव्यू कर लेते हैं पहले। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, अगर कोई મેમ डाउट મારે हो। हाँ, મારે એવું પૂછવું હતું, મારી ડ્રાય સ્કિન છે, તમે ઓલું ઘસવાનું કીધું હતું, તો ઘસું તો વધારે પ્રોબ્લેમ ના થાય? नहीं नहीं, કાઈ ના થાય, કાઈ ના થાય। ઓકે see, ડ્રાય સ્કિન શેના માટે થાય છે? બીકોઝ ઓફ ધ ઓઇલિંગ અંદર ઓછું છે, રાઈટ। અને વધારે ને વધારે વોટર કન્ટેન્ટ નું પ્રોડક્ટ તમારું ઓછું છે। સેકન્ડ, તમારું ડિટોક્સિફિકેશન यानी કે ટોક્સિન્સ વધારે છે શરીરમાં। ઓકે મેમ જો ટોક્સિન વધારે હશે તો ડ્રાય અને ડ્રાય વધારે થશે। હા એટલા માટે તમારે શું કરવું પડશે? પહેલા તો છે ક્લીન યોર બોડી ઇન્ટરનલી। તો ક્લિન્ઝિંગ કરશો તો તમારું એક્સટર્નલ સારું આવશે। હવે ઓકે વારંવાર ડ્રાય દેખાય છે તો શેના માટે? કે તમારું બોડી અંદરથી ડ્રાય છે, અંદરથી ટોક્સિન ગંદકી ભરેલું છે, એટલા માટે થાય છે। તો ફર્સ્ટ ક્લીન યોર બોડી, રાઈટ। તો લાઈક અને પ્લસ તમે મને કીધું પણ હતું કાલે કે તમને થાઇરોઇડ છે, હા મેમ હા બરોબર। તો હવે થાઇરોઇડ એટલા માટે કે જો તમે સ્ટ્રેસફુલ લાઈફમાં રહેતા હોય, या તમે બહુ ટેન્શનમાં રહેતા હોય, या બહુ વિચારો તમારા આવતા નોન સ્ટોપ, હમણાં તમે અહીંયા છો પણ મન બીજે જતું હોય કે હા અચાનક મેમ રાઈટ। હા તો શું થશે? જેટલું તમે ટેન્શન, હવે એક ध्यान રાખો, તમે ટેન્શન કરવાથી એ કાર્ય પૂરું નથી થવાનું, રાઈટ। તો એના માટે છે કે જે થઈ રહ્યું છે એને થવા દો। હમણાંનું જે કામ છે આપણું, તો કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા જ રાખો તમે। પછી આ પત્યા પછી તમે તો જે વસ્તુમાં તમે જે ધ્યાન આપશો ને તે કાર્ય તમારું બહુ સારી રીતે થઈ શકશે, રાઈટ। તો તમારે ફક્ત એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વિચારોને કરવા માટે, થાઇરોઇડ માટે કે એના માટે તમારે શું કરવાનું છે? તમે મેડિસિન લો છો? કેટલી છે હમણાં? હા ચાલુ જ છે ચાલુ છે, રાઈટ। તમે મેડિટેશન કરો છો? ધ્યાન કરો છો? હા સવારે કરું છું ધ્યાન કરો, રાઈટ। તો ધ્યાનમાં વિચારો બહુ આવે છે, ક્યારેક ક્યારેક આવી જાય રાઈટ? ઓકે, તો મેક શ્યોર ध्यान રાખો તમારા મેં જે કાર્ય કીધું હતું તમારી જેટલી ઉંમર છે એટલું તમારે ધ્યાન કરવાનું છે। હા હા 48 હોય તો 48 મિનિટ यानी કે 50 મિનિટ સુધી તમારે ધ્યાન કરવાનું છે। ઓકે હવે જ્યારે તમે ધ્યાન કરવા બેસો ને તો શરીરમાં થાઇરોઇડ ઉપર નજર લઈ જજો અને જે ઓર્ગન ઉપર તમને લાગી રહ્યું છે કે મારે આ ઓર્ગનમાં તકલીફ છે એ ઓર્ગન ઉપર તમારું કોન્સન્ટ્રેશન શ્વાસોશ્વાસ એ જગ્યા ઉપર લઈ જજો। ઓકે મેમ તમે એ જગ્યા ઉપર લાઈક હું ધ્યાન કરું છું, મારું કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા છે કે હું એટલું ધ્યાન વ્યવસ્થિત રીતે કરું કે અહીંયા મને છે ને આમ ચક્ર ફરતું હોય ને એ રીતે તમને નજર થવું છે, રાઈટ। અને થાઇરોઇડ ઇઝ નોટ લાઈક વેરી ડિઝીઝ ટાઈપ નથી, એ બહુ ક્યોર થઈ શકે છે, એ હાર્ડ નથી। થાઇરોઇડને ક્યોર કરવાનું મુશ્કેલ નથી, રાઈટ। થાઇરોઇડ ને તમે જો 3 મંથમાં પ્રોપર કરશો તો 3 મંથમાં યુ કેન ક્યોર ફ્રોમ યોર થાઇરોઇડ। ઓકે મેમ પણ એક જ છે ખાનપીનમાં અમુક વસ્તુ એવોઇડ કરવાની, અમુક વસ્તુનો ઇન્ટેક લો। સેકન્ડ, તમે જે કરો છો એમાં મનપૂર્વક કોઈ તણાવ જેવું હોય ને એવું નહીં કરતા, ઓકે મેમ રાઈટ। થેન્ક યુ મેમ સવારે તમે ડિટોક્સમાં છે ને ધનિયા પાણી લઈ લેજો। ઓકે કોથમીરનું આવે ને, કોથમીરના પાણીનું પહેલા ડિટોક્સ વોટર ફર્સ્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ લઈ લો અને પછી તમે શું કરો, જે મેં તમને કાલે કીધું બ્લેક રેઝન, રાઈટ। તો એ બંનેનું ચાલુ કરી દો અને હા ધીરે ધીરે ખાવામાં તમારું જે પણ તમે ખાવ છો એમાં ઘીનું પ્રમાણ છે, પાણી મેક્સિમમ તમારું પાણી વધારે જવું જોઈએ। ઓકે મેમ થેન્ક યુ મેમ और किसी को कुछ है, कुछ क्वेरी या कुछ पूछना है कल के रिलेटेड? नो ना, ठीक है। तो जैसे हमने कल बात की थी कि आपका शरीर, सॉरी मैम, वन क्वेरी कैन आई आस्क नाउ? या गो अहेड। Yeah, मैम एक्चुअली ना you were talking about the dry skin, right?
Yes. But you know, my whole remaining lower body, lower limbs, like my both the legs are dried out, right? And still acne is there on my forehead and on my cheeks. So some, you know, different shines are there on my forehead and only on cheeks, and sometimes it is on chin. So This and is during like the summer what, also I have to apply the lotion, and still the acne problem is there. So what to be done, ma'am? okay, so your problem is your face is like oily, like you know the breakouts is coming forehead area and the chin area and the cheek area also sometimes, right? Yeah. Yeah, and the whole body is dry. You are thinking my whole body is dry. Ma'am, can you see my acne? Yeah. Can you see on my cheeks and Ankit, like, can you just pin on her? अंकित भाई उनको हाईलाइट कीजिए. and even on my back also, ma'am. Acne is there on my back Very also. small Back? नहीं, Oh, so on sometimes your forehead area it's very sometimes in very tiny big size, small ma'am. No. Sometimes in very big size. big On size, right? face, yeah, in face, it is very small, but on back, sometimes it very big size. Okay. So see what happens, जैसे इनका प्रॉब्लम है, पूरा बॉडी उनका ड्राई है, राइट? हाँ, एंड द फोरहेड एरिया, चिन एरिया और समटाइम्स बैक एरिया में उनको फुंसी होती है. हाँ, और कभी कभी वो पश्चुल में भी जाती है, वो एक्ने और फिर पश्ची हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, राइट? हाँ, राइट. तो देखिए अब इनका कैसा है, इनको हार्मोनल इम्बैलेंस है. और मैम पता है लिप्स पे मुझे इवन समर में भी लिप गार्ड अप्लाई करना ही पड़ता है. लाइक in every hour gap I have to apply lip guard on my lips also. Okay. You have any other issue also in body, other like you know you have any any imbalances? Hormonal imbalance? Yes. No. My menses are very regular. Yeah, it comes on date only. Date or regular or like how is this everything? Or 3 or 4 days earlier. 4 days है, right? आपके menstrual जब हो रहा, आपका जो period था, तब आपके flow कैसा रहता था? It's normal, ma'am, and very easy flow. Yeah, without any pain. Yeah. Without any pain, and 5 days, 4 days? 5 days. 5 days, right? And the redness या brownness? Little bit brownish. Brownish, little bit brownish, right? Okay. Clots are coming? Yeah. Right? Okay. तो देखो ये आपको दूसरी मैं एक साइन बता देती हूँ. जब शरीर के अंदर ओवरीज की लाइनिंग, हम हमारा जो मेंस्ट्रुअल का पीरियड आता है ना, तब आप लोगों को पता है ओवरीज में से, राइट? तो जो लाइनिंग है उसमें उनको प्रॉब्लम हो गया. अब भले वो मेनोपॉज में हो गए, आई थिंक सो यू डन, राइट? मेनोपॉज का आपका हो गया है? नो मेनोपॉज नहीं हुआ है. अच्छा, आपका किसने कल बोला था उनका मेनोपॉज का हो गया? आपका क्या, आपकी क्या एज अभी है? मेरा 40 कंप्लीट. ओके देन इट्स नॉट इशू. ओके, अब देखिए जब 40 है तो बोलते हैं ना मेनोपॉज में कैसा होता है, पेरीमोनोपॉज भी होता है, यानी अर्लियर भी होता है. तो आपको एक ध्यान रखना है, आप बोलते हो सब हम लेडीज क्या बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल का भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब मेंस्ट्रुअल में 4 डेज जाता है, 2 डेज जाता है, 5 डेज जाता है, वो कैसे जाता है, कैसे फ्लो में जाता है, कलर कौन सा आता है, और द सेकेंड थिंग क्लॉथ्स आते हैं कि नहीं. क्लॉथ्स कैसे आते हैं? वो छिद्रे जैसे आते हैं, राइट? समटाइम्स ऐसे आप देखना रफ जैसा ऐसा कुछ आता होगा, ब्लडी और क्लॉगी जैसा ये हो जाता है, राइट? तो समझ जाना है कि जो आपकी ओवरीज है वहां पे गंदगी आउट लाइनर के वहां पे क्या हो गया है, गंदगी जमा हो गई. अब गंदगी तो दैट मीन्स ऐसे उनका 25 का डेज का साइकिल होगा, आपका 25-28 डेज का साइकिल है. यस. तो आपको बैक पेन, टमी पेन, एनी अदर पेन इज सराउंडिंग होता है कुछ? जब पहले होता था बट ना रेगुलरली योगा करने से वो सब नहीं होता है. अभी इजी फ्लो होता है. अदरवाइज या इनिशियल डेज व्हेन मेंसेस वाज स्टार्टेड इट वाज टू मच ऑफ पेन. हाँ,
राइट। तो अब देखो ये साइन होती है, अब योग वो कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनका डेवलप हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। लेकिन पहले जो था वो क्या था, पेनफुल जैसा, पेन कहीं ना कहीं लगता हो लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक, राइट। तो आपको क्या करना है, अभी ध्यान रखो, एक है किडनी क्लिनजिंग, राइट, वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो जैसे ही आप डिटॉक्सिफिकेट 20 डेज 21 डेज का प्लानिंग होता है, आप कैसे करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपको खुद को फिर धीरे धीरे बैलेंस में आता जाएगा। और ये जो गंदगी निकल रही है वो जो वो क्रॉस में निकल रही है, तो इसका मतलब है हार्मोन में अभी भी गड़बड़ी है, राइट। अभी भी अंदर आपका है, इसीलिए आपका शरीर ड्राई की तरफ, लेकिन ऑयल रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गंदगी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको चेहरे पे, क्योंकि चेहरा इज सेंसिटिव, तो चेहरे पे और बैक पे, ये दो जो एरिया है वहां पे क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्ने फ्रॉम आ रहा है। तो आप नहीं, आप ऑयली स्किन हो, नहीं हो आप ड्राई स्किन, ठीक है, दोनों में आप कंबाइन में जाते हो। तो आपको पहले तो है ना डिटॉक्सिफिकेशन करना है, बॉडी को क्लींस कीजिए। आपको लगता है मैं बहुत ही दूसरे भी इश्यू हो गए, वो हमें प्राइवेट में पर्सन में बाद में बात करना पड़ेगा। अभी हमारा जनरल क्लास चल रहा है, तो मैं जनरल में आपको वही बताऊंगी कि समटाइम लगता है कि मुझे मेंस्ट्रुअल में कोई दिक्कत नहीं, मेरा फ्लो बराबर है, लेकिन जब पास में कहीं ऐसा हो या फिर अभी भी क्लॉथ निकलते हो और वो ब्राउन में जाता हो, यूजुअली रेड आपका निकलना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ब्राउन में अगर जाता है तो समझ जाना है कि मेरी किडनी में, मेरी ओवरीज में तकलीफ हो रही है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, हाँ, हमारा होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसमें भी मुझे तकलीफ हो रही है, दैट मीन्स मेरा जो हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, राइट। तो एक तो आप योग आसन तो करते ही हो, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आसन है, तो वो आप करते ही होगे, राइट। तो वो आपको उस पे कंसंट्रेशन करना है, प्राणायाम पे कंसंट्रेशन करने हैं, जो स्पेसिफिक है वो ही आप करना, हर रोज करते हो वो नहीं करना है, ठीक है। और फिर ध्यान इज इम्पोर्टेंट। देखो कोई भी चीज हो, थायराइड हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, कुछ भी लो, ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है, राइट। वो मेडिटेशन से ही ये जो कंडीशन है ना, इतना इम्प्रूवमेंट वो मेडिटेशन और उसी से ही आया है। यस, अदरवाइज हाँ, बिफोर मैरिज तो वो पिल्स देते थे, तब जाके रेगुलर आता वही था। मैंने आपको बोला ना कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, राइट। आप अभी बोल रहे हो, लेकिन मेरा ये सिंस मैं ये फील्ड में काफी सालों से, तो फटाक से पता चल जाता है कि हाँ इन लेडी का ये प्रॉब्लम, ये लेडी का ये है। आपको मैंने पहले बोला आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, और अभी भी है, अभी भी है, आता होगा, लेकिन ऐसा होता है ना 2 दिन 3 दिन का पूरा ऐसा आपको पता होना चाहिए, हाँ जा रहा है, लेकिन अगर बीच बीच में ऐसा कुछ गटके आ रहा है बीच बीच में, तो दैट मीन्स स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं हो रहा, राइट। तो वो एक आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बोला कि किडनी का आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और खास करके सीड्स थेरेपी आप कर लीजिए, राइट। पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, देन चिया सीड है, देन सनफ्लावर सीड्स है। तो आपको क्या करना है, एक एक दिन एक एक सीड का करना है, राइट, दैट इज कॉल्ड सीड थेरेपी। तो वो क्या होगा, जैसे आप सीड थेरेपी करोगे आपका फ्लशिंग होने लगेगा, राइट। और वो मत सोचना कि समर है तो मैं सीड्स खाऊं के नहीं, वो नहीं सोचना। दूसरा, वो सीड्स, लाइक सीड्स की चटनी बना के ले सकती हूँ। सीड्स की चटनी, लेकिन वो कितने दिन रहेगा, ये तो क्या होल सीड हो गया ना, आपको सिर्फ ले लेना है। अच्छा, ओके। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, एवरीडे है ना मेरा, लाइक दोपहर को मैं जवारी की रोटी एक दिन खाती हूँ, एक दिन रागी की रोटी, ऐसे मल्टीपल ऑफ वो जो है जितने भी फ्लावर है वो अलग अलग एवरीडे कुछ किया हुआ है मैंने, फॉर द 7 days डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोटी, राइट। एंड उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट सीड्स की चटनी लेती हूँ, लाइक अगर आज ये सीड्स लिया है, कल को और दूसरा, फिर देन और दूसरा, ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चल गया, ठीक, एक ध्यान रखना आप लोग सभी लोगों का, भले इनका आज क्वेश्चन है, अगर आपको पता चला मुझे थायराइड है, समझो है मैम आपको थायराइड है, राइट, आपका है हार्मोन इम्बैलेंस, तो आपको कंसंट्रेशन उसी पे करना है। फिर ऐसा नहीं कि आज में, वो कौन कर सकता है कि जो लोग नॉर्मल है, जैसे मेरा मेनोपॉज का चल रहा है, तो आई कांट गो स्पेसिफिक, मेनोपॉज के लिए कुछ भी नहीं है,
मुझे हैप्पी और हेल्दी रहना है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, राइट, दिस इज द एंड ऑफ द मेनोपॉज। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एवरी डे या एक दिन छोड़ा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसा कुछ शेड्यूल बना। लेकिन आप लोगों का अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आपका कंसंट्रेशन 3 महीने तक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में लगना चाहिए कि मुझे ये हो रहा है तो मुझे यही खाना है, समझ में आया, तो ये डाइट पे कर सकते हो। आपका डिटॉक्स वाटर है वो मुझे 21 दिन तक सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं चेंज करना है कि जैसे आज मैंने ये पी लिया, कल मैंने वो पी लिया, परसों मैंने नहीं, वो नहीं करना है आपको। 21 डेज इज साइकिल, ध्यान रखना, हर एक की 21 डेज की हमारी ये होती है, तो 21 डेज का करना है, उसके बाद आपको करना है 40 डेज का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बढ़ाना है और मैक्सिमम 3 मंथ तक करना है आपको, 3 मंथ, राइट। उसके बाद स्टॉप कर देना है, 3 मंथ के बाद स्टॉप कीजिए और 3 मंथ में आपका डाइट, आपका योगासन एंड मेडिटेशन, राइट। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे, जैसे आपका है तो आपको क्या करना है, ऑन योर बेली, ये पार्ट है बिकॉज दिस इज योर ओवी। ओवी सबको पता है ना कैसे चेक करनी है, नाभि यहाँ पे है आपकी, ठीक है। तो नाभि पे आपको 2 यानी कि हम रखने ऐसे, और जहां पे अपना जाता है यहाँ पे अपनी ओवरी आई है, समझे। तो यहाँ वाले आसन करने हैं, मंडूक आसन इज द बेस्ट आसन, समझ जाना, ठीक है। शलभासन इज द बेस्ट आसन। तो फिर शलभासन भुजंग किया आपने, ओके। तो यहाँ पे मुझे दबाव आना चाहिए, ये एरिया पे मैं ऐसे भी बैठी हूँ तो इस तरह से करूँ, तो मुझे ये एरिया पे हो, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा जो लोअर का पार्ट है दिस मच आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक है हॉट बाथ, हॉट का रखेंगे, आपके पास टब हो, समझ लीजिए आपके पास टब हो तो टब में पानी भरिए, यहाँ तक आपको बैठ जाना है उसके अंदर, टब बाथ में आपको थेरेपी देगी, राइट। तो लोअर का नाभि के नीचे का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व होगा। एक तो टब में आप बैठिए, दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है, नवल एरिया से यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा आपको क्या ये रखना है, ठंडी पट्टी रखनी है, ठंडी पट्टी, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, गरम लपेट लगा दीजिए, या ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, पहले हॉट बैग रख लीजिए, हॉट बैग, ठीक है। और उसके ऊपर फिर कोल्ड पानी का आपको क्या करना है, लगा देना है। तो इन शॉर्ट में हॉट एंड कोल्ड का हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो आपका नाभि है वहां पे सरसों का ऑयल, ठीक है, सरसों का ऑयल, और रोज आपको डालना है 5 ड्रॉप, ठीक है। तो वो आपको करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले तो लोकेशन समझना है, मुझे यहाँ पे है तो मुझे क्या करना है। दूसरा है उड़ियान एंड अग्निसार, हाँ, उड़ियान विद द अग्निसार आपको दिन में 3 बार 2 बार करना है। एंड कपालभाति क्रिया जो है वो आपको 5 मिनट एंड 5 मिनट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करने बैठोगे ना कि जो स्पेसिफिक है उसी पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन करना है। एंड रागी बाजरा दैट इज द बेस्ट फूड, वो आपको खाना है। जो कूलिंग देता है वो नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत कूलिंग देता हो जैसे ज्वार है, जब वो कूलिंग देगा, राइट, हाँ, तो उसको मिला सकते हो थोड़ा सा, बट बहुत नहीं। लेकिन रागी है और उसके अंदर थोड़ा सा मिलाए तो ठीक है, आपने चलेगा, राइट। ये रागी का खा लिया, दैट्स अ गुड साइन, तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा है, आपको भी क्या करना है कि जो धनिया है, जीरा और धनिया का पानी देना है आपको, हीना बेन सिर्फ धनिया का, और आपको जीरा और धनिया का पानी। और जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल का पीरियड आता है 7 डेज बिफोर स्टार्ट द अजवाइन वाटर, ठीक है। तो इससे आपका डाइजेशन, Even in summer also we can have ajwain water. yeah, go ahead, don't worry about it, don't worry about it. You can take ginger, you can take clove, you can take ajwain. See, we are doing a detox, हम लोग डिटॉक्स कर रहे हैं, पूरे दिन नहीं पी रहे। तो सुबह जैसे आप करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका फ्लशिंग होगा, और वो जो अजवाइन है वो आपको हेल्पफुल रहेगा जब आपका पीरियड आएगा, मेंस्ट्रुअल का टाइम आएगा, तब आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ड्यू टू द हार्मोन के कारण आपके क्या हो रहा है, ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन
और ड्राइनेस, दोनों क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और खान पीन में स्टॉप ऑयली प्रोडक्ट, कितना भी हो जाए 3 मंथ स्टॉप स्टॉप कर दीजिए। 3 मंथ नो शुगर, यानी कि कैसे, इंस्टेड ऑफ शुगर जैगरी का यूज कीजिए। और आपको क्या लेना है, इसका लेना है खजूर, खजूर एवरी डे। और वो भूल जाइए मैम समर है, मैम विंटर है, मैम रेनी सीजन है, नो नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो आप खजूर का इंटेक, हर एक नारी को हर रोज 5 खजूर खाना 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 ही है, कंपल्सरी, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी बॉडी में से जो फ्लशिंग हो जाता है, ब्लड जो निकल जाए, तो एनीमिक हो जाए, तो हम क्या हो जाते हैं, वो कवर। आप सोचिए एक वक्त में हमारे जो 3 दिन बाद 1 बाल्टी ब्लड जाता है हमारा, 1 बाल्टी, ओके। इतना हम वापिस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसी के लिए हमें क्या चाहिए, खजूर है, अंजीर है, डेली रूटीन में डालिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं रोज इतने सालों से लेती हूँ, मेरे में कुछ हुआ उल्टा, आपका जब मेनोपॉज का आएगा ना, वेरी इजीली आ जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यू आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग, यहाँ मेरा मेनोपॉज का आ रहा है, थोड़ा सा और, तो आपको हेल्दी वे में आपका होगा, राइट। तो आपको बस वो ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, ऑयली कॉम्बिनेशन ड्यू टू द हार्मोन के तरीके से हो जाए। और खान पीन में आपको क्या ध्यान रखना, हर एक नारी को घी, आप सभी को मैं बोल रही हूँ, घी खाना खाना ही है आपको, घी। और रोज आपके मील में 2 टेबलस्पून जाने चाहिए, 2 टेबलस्पून घी जाना ही चाहिए। दूसरा, जब आप सुबह उठते हो, सुबह कोकोनट वाटर, जो कोल्ड प्रेस कोकोनट वाटर आता ना, उसका आप क्या कीजिए, ऑयल कूलिंग कीजिए। क्यों ऑयल कूलिंग करना है, अब आप देखिए, शरीर में वात पित्त कफ तीनों का इम्बैलेंस है। तो वात पीछे है, एकदम पीछे वात होता है, उसके आगे टंग पे, जो हमारी टंग है ना, तो वो टंग पे वात लास्ट में होता है। बीच में आप ध्यान रखना ग्लिसी होगा, कफ होता है, और आगे जो है टिप वो पित्त होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो इसे जब आप स्क्वीशिंग ऑयल का करते कोशिश कीजिए, पहले 1 मिनट रहे, फिर 2 मिनट, 5 मिनट तक मुंह पे करना है, एवरी वक्त करना है, राइट। इससे क्या होगा, हमारे वातपित्त कफ, दूसरा फेशियल की ये एक्सरसाइज है, ठीक है, कि हर रोज आप जैसे ही करोगे क्या होगा, हमारे मसल, तो वो आपका क्या होगा, टाइटनिंग होगे, तो आगे आपको सैगिनेस नहीं होगा, या आगे आपको लगेगा ऑलवेज क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे लिफ्टिंग हो रहा है, विदाउट एनी फेशियल यू फील लिफ्टिंग हो रहा है, राइट। तो और फिर स्पीट आउट कर लीजिए, फिर निकाल दीजिए, और उसके बाद गरारा कर लीजिए, और नमक वाले पानी से, क्योंकि वो जो एक्सेस ऑयल रह गया है उसका गरारा कर लीजिए। तो ये आपके वात पित्त कफ का दोष का रिलीज करेगा, स्किन में इंप्रूवमेंट डालेगा, अंदर कोई भी तरह की ड्राइनेस होगी उसको रिलीज करेगा, और फिर जो हमारे शरीर के अंदर पित्त है, वात, व्हाटएवर हैपनिंग, राइट, उसको बैलेंस करने में फायदा करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास अगर कोकोनट हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो तस्मी, तिल हो तो भी चलेगा, कोई भी, अप टू यू, आपके पास जो ऑयल है घर पे वो, लेकिन दो ऑयल ये जो है वो करना है, राइट। तो फेस का हो गया इस तरह से। तो ये हमारी लाइफ में हर रोज का रूटीन है। 3 मंथ के बाद स्टॉप करना है, देन थोड़ा स्टॉप है, वापिस आपको अलग से ऑयल लेके इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नाउ कि जैसे कल हमने बात किया 5 टाइप्स ऑफ अवर स्किन है, तो वो स्किन के अंदर हमारी डिस्कलरेशन आ जाती है, हमारे में पिगमेंटेशन आती है, क्यों आती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, गंदगी भरी है। तो पहला कॉन्सेप्ट, रिमूव गंदगी। रिमूव गंदगी करने के लिए कल बताया था आपको, मैदा हरगिज नहीं खाना है, 3 महीने तक आप कोशिश कीजिए, तो आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट है। प्लांट बेस पे चले जाइए, अगर आपको दूध पीना है, मेक अ
कोकोनट वाला दूध बनाइए और बहुत इजी तरीके से बनता है। आलमंड वाला बनाइए, सोया वाला बनाइए, फ्लैक्सीड वाला बनाकर आप इसका बनाकर पीनट का भी बहुत इजीली बन जाता है। पीनट का तो बहुत ही इजी, पर एक मुट्ठी से आप सोचो 1 लीटर जितना आपका बन जाए, राइट। उसी में से दही बना लीजिए और उसी में से दूध बना लीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट अपना, जिनको भी कोई भी तरह का, आपको थायराइड है, आपको हार्मोन का ये है, और श्रुति को आई डोंट नो उसको किस तरह से क्या है, और लास्ट में जो ये है, तो आपको किसी को कोई भी हो, फर्स्ट स्टार्ट प्लांट बेस्ड मिल्क पे चले जाइए। 3 मंथ तक करिए, आप सिर्फ 3 मंथ तक करिए, फिर देखिए आपकी स्किन में और बॉडी के हर एक ऑर्गन पे आपको फायदा दिखाई, राइट। तो इस तरह से आपको प्लांट बेस्ड करना है। दूसरा, सॉल्ट का इंटेक में सैंड डाउन नमक, कंपल्सरी सैंड डाउन नमक, नो अदर नमक। 3 महीने तक आप अप्लाई कीजिए सैंड डाउन नमक, राइट। तीसरा, जो आप ऑयल का यूज करते हो, कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल में आपके दिन में 2 टेबलस्पून ही जाना चाहिए, 2 टेबलस्पून पूरे दिन में, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वो आपके ऊपर है, मैं दाल में कितना करूँ, इस पे कितना करूँ, इसमें कितना, लेकिन वो जो तरी जैसा होता है, जब आप रोस्टिंग करते हो, आप जो ग्रेवी बनाते हो, वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो जब आपके बैलेंस नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब आज का जो हमारा है क्लिंजर या वॉश, क्यों करना चाहिए क्लिंजिंग या वॉश अवर फेस, राइट। तो अब देखिए, गंदगी आपके शरीर में कहीं ना कहीं तरीके से आती है, डर्ट आती है। जैसे भले हम घर पे रहे, लेकिन घर पे भी स्मॉल माइक्रोन्स होते हैं जो आप नरी आंखों से देख सकते हैं। आप देखना, धूप हो ना, तो आपके बेड के ऊपर आपका दबा करना, एक छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। आपको अरे बाप रे, ये तो मैंने धब करता हुआ देखो इतना गंदा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप भले घर पे रहते हो या बाहर रहते हो, आपकी स्किन के ऊपर भगवान ने ऑयल दिया हुआ है नेचुरल, और आपकी स्किन कैसी होती है, पोर्स वाली होती है, पूरी पोर्स वाली। तो वो पोर्स के ऊपर क्या हो जाता है, ये गंदगी चिपक जाती है। अगर आप क्लींजिंग प्रॉपर नहीं करते हो, वॉश प्रॉपर नहीं करते हो, तो ये डर्ट क्या होगा, पाइल अप होती जाएगी, और धीरे धीरे आपके जो पोर्स पहले कैसे थे, ऐसे थे, धीरे धीरे पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्यों, गंदगी आई। अब गंदगी में केमिकल आया, गंदगी में डर्ट आया, गंदगी में कुछ भी तरह के पार्टिकल्स आ गए, कुछ ना कुछ, तो वो क्या करेगा, पोर्स ओपन करेगा। अब आपने ध्यान रखो कि जब आप किसी की स्किन देखते हो, तो लगता है ओपन पोर्स दिखते हैं, उसके ओपन दिखते हैं पोर्स, वो एक है। फिर आपको ड्राइनेस की इचीनेस लगती है, क्यों, क्योंकि उसका क्लींजिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, इसीलिए वो हाइजेनिक नहीं रखते, इसीलिए ये सब कुछ हो जाता है। तो ये है एक्सटर्नल से क्लींजर, हमें इसलिए वॉश और क्लींजर करना है कि जिससे हमारी फर्स्ट डर्ट लेयर, हम जो पहली लेयर है उस पे हम काम कर सके, हमारी गंदगी को हम निकाल सके। अब क्लींजर या वॉश कैसे पता चले, तो ध्यान रखें, अगर ड्राई साइड पे आपका चेहरा जाता है, यू नीड जेल बेस, यू नीड क्लिंजिंग चाहिए, क्लीन करने के लिए क्रीम बेस जैसा चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपका ऑयल बेस तक जा रहा है, ऑयली की तरफ जा रहा है, यू नीड थोड़ा सा पाउडरी बेस ले सकते हो, थोड़ा सा आप क्ले बेस ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जेल बेस भी ले सकते हो, राइट। और जो आपका कॉम्बिनेशन है दोनों में चलेगा, ज्यादातर ड्राई और ऑयली होता है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो फोमी वाला आपने बहुत लिया, ठीक है, बहुत फोम है, बहुत फ्रेग्रेंस है उसके अंदर, तो और हमारी स्किन खराब होती है। तो जब भी आप मार्केट से लाते हो, घर पे तो बनाना मैं बताऊंगी, लेकिन मार्केट से लाते हो तो फोम नहीं चाहिए। ऑल स्किन टाइप वाला लिखा होता है कभी कभी, लेकिन आपकी स्किन है ड्राई और आप लेते हो ऑल स्किन टाइप, तो वो नहीं चलेगा। मॉइस्चर क्लिंजर या फिर फॉर द ड्राई क्लिंजर ऐसा लिखा होना चाहिए, तो ही आप यूज करो। और ऑयल हो तो ऑयल बेस्ड लिखा होना चाहिए, ऑल स्किन वाला नहीं लेना है। ऑल स्किन का मतलब हुआ थोड़ा सा ड्राई,
थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा ये नहीं, तो वो नहीं लेना है। दूसरा, फोम वाला ड्राई के लिए नहीं लेना है, कभी भी ड्राई के लिए फोम, वो क्रीम बेस पे लेना है। जिसपे फोम होता हो वो ऑयल के लिए ठीक है कि मुझे क्लीन करना है तो डीपर में क्लीन कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कि आपको इसके अंदर क्या हम अरोमास ऐड कर सकते हैं? यस, आप कुछ क्लींजर जब बनाते हो या वॉश करते हो तो उसके अंदर अरोमा को ऐड कर सकते हो टू डीपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लींजिंग होता है, ध्यान रखना। कैसा? फर्स्ट होता है लाइट क्लींजिंग। लाइट क्लींजिंग का मतलब सिर्फ आपने पानी लिया, घिसा, या फिर वो मेरा फेस साफ हो गया, लाइट क्लींजिंग शॉर्ट। दूसरा होता है मिनी क्लींजिंग। मिनी क्लींजिंग का मतलब आपने थोड़ा सा लिया, कुछ भी अपना लिया और रगड़ा, हो गया खत्म, दैट इज अ मिनी क्लींजिंग। एंड नाउ द डीपर क्लींजिंग। हाँ, डीपर क्लींजिंग का मतलब है यू नीड 2 टाइम, 2 बार आपको क्लेंस करना पड़ता है। एक बार आपने किया, वो हुआ हमारा सिर्फ अपर की लेयर, और दूसरी बार जब करते हो तब हम क्या ऐड करते हैं? एक्सफोलिएशन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। दैट मींस इज द डीपर क्लींजिंग हो जाता है, राइट। तो यही क्लींजिंग में आता है कि आपको क्या करना है कि बहुत दिनों के बाद किया है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो क्लींजर में एक्सफोलिएशन ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा हमारा डीपर क्लींजिंग। अब डीपर क्लींजिंग फॉर द एवरी स्किन एक्सेप्ट सेंसिटिव स्किन, वो यूज नहीं कर सकती डीपर क्लींजिंग, वो सिर्फ माइल्ड पे ही जाएगी, सेंसिटिव वाली बाकी किसी पे नहीं जाएगी। दूसरा, अगर ध्यान रखना आपके वॉन्ड ओपन हो, मिस्टियल हो, यानी कि ओपन ऐसे कि दिखता है कि मुझे यहाँ पे कुछ लग गया है, यहाँ पे ब्लडी दिख रहा है, या फिर पस्टूल हो गया है, ठीक है, फोड़ा फुंसी फुटने वाला, तो ऐसे पे डीपर क्लींजिंग नहीं करना है, एक्सफोलिएशन नहीं करना है आपको, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप सभी स्किन में कर सकते हो। अन्य एलर्जी हो तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एलर्जी के लिए क्या करना है अभी, तो वो आपको ध्यान में करना है। अभी से जाऊंगी ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम, जब आप फेस वॉश करते हो या आप कैपिंग कैसे करते हो, आपने लिया हाथ में, उसके बाद डाइलेट करना बहुत जरूरी है, पानी डालना बहुत जरूरी है, या क्यों, इनको पीएच बैलेंस करना, तो पानी डाला, इंस्टेड ऑफ पानी रोज वाटर डाल दीजिए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट है, उसके बाद आपने मान लो साफ तो कर लिया, हाँ, अच्छी तरह से थर्ड फिंगर से आपको करना है, कभी भी पूरा हाथ से कभी भी क्लींजिंग नहीं करना है, जस्ट थर्ड और फोर्थ फिंगर, थर्ड और फोर्थ फिंगर से, या यहाँ पे 5 फिंगर, ठीक है, और फिर जब आप करते हो तब पूरा हाथ आ जाए, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लींजिंग करना है। जब आप करते हो आपके पास इस तरह का सॉफ्ट सॉफ्ट वाला कपड़ा होना चाहिए, जिससे आप डैबिंग करोगे। आफ्टर क्लींजर कभी भी रगड़ना नहीं है, लोगों को आदत होती है टॉवेल से रगड़ के, नहीं, वी नीड अ मॉइस्चर, पानी चाहिए हमारे फेस पे, यानी थोड़ा सा गीलापन चाहिए, तो आपको क्या करना है? डैबिंग, डैबिंग करना है, और वेरी सॉफ्ट मटेरियल का ऐसा कपड़ा लेना है। अगर ये ना हो तो इस तरह से स्पंज आते, जैसे मैं पानी में डालूंगी क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा और ये सॉफ्ट स्पंज हो जाएगा, सॉफ्ट, तो आप वेरी जेंटली इसको आप वाइट कर सकते हो, ओके, तो ये पानी में जैसे ही डालते हो जाता है, तो ये है, या फिर ऐसे छोटे छोटे भी आते हैं मार्केट में, तो आप वो ले सकते हो। नहीं हुआ तो आप कॉटन से वाइट कर लो, कॉटन से वाइट कर लो, उसके बाद पानी डालो और फिर टैप कर लो, डर्बिंग कर लो, ठीक है। तो एक बात वो ध्यान रखने की कभी भी रगड़ना नहीं है आपकी स्किन को, एक ध्यान रखना, सिर्फ
टैपिंग करना है, नो रगड़ना, रगड़ना नहीं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है और अब हम चलते हैं हमारे डेमो की ओर। क्या करूँगा, कुछ पूछना नहीं है ना? अब मैं चलिए ओके। दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, आप नहीं दिख रहे। नहीं, मैं दूसरे इसमें हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? હા Yes, દેખાય ma'am. છે કારણ Yes, કે ma'am. હા દેખાય દેખાય, તમને ma'am. સ્પોટલાઇટ કરીને હા, નાખ્યા ma'am. છે દેવેન. હવે હા. તમે દેખાશો. પેલામાંથી હું આવી ગઈ ને એટલે મારા બે ચાલતા હશે હમણાં। હા હું સમજી ગયો સમજી ગયો. હા હા, સ્પોટલાઇટ કરી નાખ્યું प्रॉपर તમને दिख रहे हैं, અત્યારે. आवाज भी प्रॉपर आ रही है, आवाज क्या हो रहा है? प्रॉपर आ रही है, एकदम अच्छा પ્રોપર लग रही है। પરફેક્ટ પરફેક્ટ પરફેક્ટ. ओके, अब सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर? પરફેક્ટ છે દેવેનીબેન, પરફેક્ટ છે. ओके, नहीं कट रहा था ना तो इसलिए। ओके, चल, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, एक तो सॉफ्ट वाला कपड़ा, तो जब भी आप करते हो ना, डैबिंग करना है, ऐसे घर्षण नहीं करना है। वेरी सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा हमेशा आपके पास अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घड़ी से जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आइदर सिलिकॉन में बना लीजिए। ये है सिलिकॉन का कप है, आइदर आपके पास सिलिकॉन का हो, दिस इज द बेस्ट, नहीं तो कांच, कांच का बाउल ले लीजिए। और नहीं हुआ देन ये दो इज द बेस्ट, नहीं हुआ देन अच्छा सा कोई भी मेलेमेंट का ले लीजिए, अच्छा वाला कोई भी, ठीक है, जो स्टेन ये ना हो, क्योंकि व्हाइट लोगे तो स्टेन होगा। तो आप अच्छा सा कोई भी मेलेमेंट का, प्लास्टिक का मत लेना, कभी भी प्लास्टिक का नहीं लेना है। तो अब हम देखिए, मैंने यहाँ पे क्लोव अरोमा, फिट्टी ट्री, फिर जिंजर, ये सारे अरोमास रखे हुए हैं, लेवेंडर और कैम्फर। इसको मिला के हम लोग क्या करेंगे, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और एप्पल साइडर विनेगर, और विटामिन ई की कैप्सूल और ए। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा घर पे बसा के रखना है। विटामिन ई और विटामिन ए इस तरह से बॉटल में आएगी, इस तरह से छोटी सी आती है विटामिन ए, ठीक है।
अब मान लो कि आपकी स्किन में नॉर्मल कुछ भी आपको नहीं है, हमें क्विक क्लिंजिंग करना है, क्विक करना है, ठीक है। आपकी ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कुछ भी हो, अब मुझे क्विक करना है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास दूध है, जो भी आपके पास दूध आता है, कच्चा दूध आता है, उसको वो जो जिस बैग में, थैली में आता है, जिसमें भी आता हो, तो उस पे आपको ले लेना है। अगर मान लो आप सिर्फ ऐसा ही लगाओगे, मुंह पे नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, अगर ब्रश के माध्यम से, नहीं तो हैंड ग्लोव्स हो, हैंड ग्लोव्स के माध्यम से, नहीं तो प्लास्टिक की थैली सबके घर पे होगी। आपको क्या करना है, हाथ में मैंने ले लिया है, मिल्क ले लिया है, और दूसरे हाथ से मैं ये करके सिर्फ क्या करी, मान लो कि ये मेरा फेस है, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, मसाज और लगा रही हूँ, सिर्फ मैं लगा रही हूँ। क्यों प्लास्टिक से कर रही हूँ, कभी कभी हाथों में हीट होती है, तो अगर आप दूध के साथ हाथों से करोगे तो क्या होगा, आपको हीट ज्यादा लगेगी। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक की थैली, जैसे दूध था ये मेरा, ठीक है, तो ये जो दूध है, दूध दिख रहा है, बस उसको मैंने लिया और फिर सिर्फ मुंह पे, देखो इस तरह से मुंह पे जो है, मुंह पे अराउंड द नोज एरिया एक मसाज भी हो जाएगा, और इस तरह से आपको क्या करना है, रगड़ लेना स्मॉल जैसे, और फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आप छोड़ो और अपना काम जो कर रहे हो वो करने लगो, ठीक है। तो अराउंड द नोज एरिया, लिप्स एरिया, अपर एरिया, वो मैंने लगा दिया। तो इन शॉर्ट में इस तरह से क्या होगा, पूरा मैंने लगा दिया, और फिर छोड़ के आपको जो करना है करो। अब मान लो कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, कि ऑयली वाला है, हाँ, या फिर आपको चाहिए थोड़ा सा डिपर में चाहिए, तो हमारे पास नींबू सबके पास अवेलेबल होगा। अब नींबू का छिलका मैंने कल बोला था आपको, जैसे अभी मैंने स्क्वीज किया है नींबू, ठीक है, तो ये नींबू पड़ा हुआ है, तो क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, इसको उल्टा किया और सिर्फ मुंह पे स्वाइप करना है, रगड़ना नहीं है, नींबू को कभी भी रगड़ना नहीं होता है, वो ज्यादा, क्योंकि एसिड है तो कभी भी रगड़ना नहीं होता है। आपका क्या कहा, स्वाइप स्वाइप, दैट्स इट, वन टाइम के लिए ही आपको क्या करना है, स्वाइप, यानी कि एक बार लिया फिर दूसरी बार क्या किया। अब आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है, आप जैसे ही करोगे ना टिंगलिंग होने लगेगा। आपको क्या करना है, स्वाइप एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, तो इसी में आपका पूरा जो है, पूरा स्वाइप, जस्ट स्वाइप करना, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया था, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा। इसको लीव करिए, जैसे 5 मिनट होंगे वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मिल्क ऑल्सो एसिड एंड द लेमन ऑल्सो, वो ड्राई हो जाने के बाद ये लैक्टिक एसिड ड्राई हो जाएगा, पील होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हाथ करोगे ना, आपका स्किन में से पीलिंग जैसा जो कचरा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आपका जो है, आप ये हल्के हाथों से जब करोगे या इससे, तो क्या होगा, सब डर्ट जो कचरा है वो धीरे धीरे आपका निकलने लगेगा। जैसे ही आप करोगे निकलने लगेगा, कचरा, मैल, सब कुछ निकलने लगेगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वन, कि आप अपने घर पे पहले ही जैसे काम करो, ये काम पे भी लगा दिया, हो गया। अब मान लो मुझे प्रॉपर तरीके से करना है, तो मैं क्या करूंगी, दूध लिया, ठीक है, कांच के अंदर दूध लिया, पहले मैं एक का ही बना रही हूँ, पूरे का नहीं बनाई, तो ध्यान रखना। दूध लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। जब भी इस्तेमाल करो, हाथों से उसका नहीं करना है, अलग अलग स्पून लेनी है, जो भी इस्तेमाल करो, हाँ, एक जैसा मत रखना। दही को डाल दिया मैंने, दही लिया,
फिर नींबू, नींबू के 2-3 ड्रॉप, नींबू के नींबू के लिए फिर मैंने क्या किया, अच्छी तरह से, अब ये ध्यान रखना, ये रेसिपी नॉट ये रेसिपी, हर एक जब आप कुछ भी मिक्स करते हो, ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ भी मिक्स करते हो तो क्या हो जाता है, आप सिर्फ इतना करोगे ना, बस हो गया लगा दो, नहीं, तो वो प्रॉपर से ब्लेंड नहीं होता है। तो ब्लेंडिंग इज अ नेसेसरी, वो मास्क हो, वो स्क्रब हो, या फिर वो क्लिंजर हो, ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है। अब ब्लेंडिंग कैसे पता चलेगा कि मेरा ये प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गया है, तो आपको 60 काउंट करना है, 1 2 3 4 50 to 60, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 60 टाइम या 50 to 60 काउंट करोगे और घुमाओगे, ये मेरा विदाउट क्लंजिंग, विदाउट ये मस्त पैकी ये अपना ये हो जाएगा, यानी कि मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा करते हो तो वो क्या हो जाता है, उसके जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स है वो फटते नहीं है, वो मिक्स नहीं होते दूसरों के साथ। तो इसलिए क्या करना है, जब भी आप कुछ भी मिक्स करते हो 50 to 60 टाइम सर्कल 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 सर्कल, जिससे आपकी फिंगर्स, रिस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाती है और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है। ये हुआ हमारा क्लिंजर फॉर द स्किन। किस स्किन के लिए है, ये है हमारी एक्ने वाली, ऑयली वाली स्किन के लिए। अगर मान लो इसी में मुझे ड्राई वाला चाहिए तो क्या करना है, हनी को ऐड कर दीजिए, इसी में हनी को मैं ऐड कर लूंगी, हनी के भी 2 ड्रॉप्स, हनी इट्स ओके, अगर आपकी ड्राई है तो आप कर सकते हो, 1 2 हो गया। अब अगेन मिक्स, अच्छी तरह से सब डाल दिया, और देखो ये क्लिंजर की तरह और इस तरह जेल की तरह हो गया अपना, ठीक है, हिलाया। फिर आपको क्या करना है, अप्लाई ऑन योर फेस, बहुत 3 लेयर जैसी आपकी हो जाएगी, या नहीं हो सकता है तो जैसे देखो, नहीं है, हाथ में लो और फिंगर्स अच्छी तरह से, क्लिंजिंग में कितना टाइम चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिंजिंग में 8 to 10 मिनट्स हमें क्लीन करना होता है फेस को, 8 to 10 मिनट्स हमें क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, 8 to 10, ध्यान रखना, अपवर्ड अपवर्ड, देन द सर्कुलेशन अराउंड द आईज एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर मान लो, तो ये था हमारा, अगर जेल डालते हो तो ड्राई, जेल नहीं डालते तो ये लाइटनिंग ब्राइटनिंग जैसा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल मुझे बनाना है, हनी सबके घर पे होगा, जस्ट ऐड हनी, हनी को डाला, बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास और आपको जाना है कहीं, बहुत फास्ट भागना है, हनी डाला और कॉफी लिया, कोई भी कॉफी या कॉफी, ओके, कॉफी भी मैंने कितनी, 1/4 जितनी ली, कॉफी ले लिया। अगेन जैसे मैंने बोला, मिक्स इट वेरी नाइसली, 50 to 60 काउंट, अब इसको आप अप्लाई करो, ये भी आपका क्या हुआ, इस तरह से हो गया, और ये हुआ माइल्ड। देखिए ये हर एक स्किन के लिए जाएगा, हर एक स्किन के लिए। अगेन आपको फिंगर्स
अपवर्ड, हमेशा ध्यान रखना अपवर्ड, सर्कल होगा अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, अप अप सर्कल, देन अप अप, इस तरह से अराउंड द एरिया, सर्कल सर्कल सर्कल, देन अप अप, राइट। तो ये हुआ हमारा इंस्टेंट। इंस्टेंट अगर चाहिए आपको कि मुझे कुछ बहुत मिक्सअप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो दिस इज इंस्टेंट, हमारा क्लिंजर बन जाएगा। अब मान लो कि आपका है, मैं वॉश कर लेती हूँ, चिकट हो गया हाथ। जैसे मैंने आपको बोला, आप जैसे वॉश फेस करते हो, यू नीड जस्ट डैब, रगड़ना नहीं है, ओके। और जैसे ही ये हो गया, इमीडिएटली आपको क्या करना है, स्प्रे, ओके। डिस्टेंस को रखिए, स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे को, मैम आप क्या स्प्रे करें? ये टोनर, मैं टोनर का बताऊंगी, मिक्सर क्या करना है कैसे। आज हम क्लिंजर Okay, पे ma'am. ले लेते, तो मैं टोनर का आपको बताऊंगी क्या करना है मिक्सर पे, ठीक है। ठीक है। तो मैंने ओके मैम। टोनर का लगाया, टोनर को कुछ भी मसाज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बट आफ्टर क्लिंजर ये जो हमने किया है, उसमें क्या होता है, हम डर्ट को निकालते हैं, हम जो भी गंदगी फर्स्ट लेयर को निकाल, लेकिन उसको पीएच बैलेंस करने के लिए क्लिंजर का इस्तेमाल किया, राइट। तो ये करने के बाद आप लोग छोड़ दीजिए डैपिंग, और छोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्रीम लगा दीजिए, कुछ भी। अब मान लो आपको क्या है कि मुझे ग्लो चाहिए और एजिंग मेरी हो गई है, ग्लो चाहिए, क्या करूं मैं? तो देखिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास एलोवेरा जेल, प्लेन एलोवेरा जेल, एलोवेरा का जेल का मैंने बेस दिया है, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ड्राई वाला भी ले सकते हैं, इस वाले एलोवेरा जेल को मैंने डाला। उसके बाद जिंजर, जिंजर अरोमा था, उसके मैंने बहुत, जब भी आप अरोमा यूज करो ना, बहुत ड्रॉप्स नहीं डालना कभी भी, 1 और 2, राइट। या लगे कि धीरे धीरे आपका हो रहा है, देन यू कैन ऐड 3। तो मैंने क्या किया, 1 एंड 2, दैट्स इट, ठीक है। ये लिया, मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं राइस फ्लोर, राइस फ्लोर, राइस फ्लोर है वो मैं डाल रही हूँ, ओके। और अब ध्यान रखिए, अच्छी तरह से मुझे इसको मिक्सअप करना है, 50 सर्कल सर्कल, 50 ना बोलना हो तो राम राम राम, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप करते हो, ईश्वर का नाम, गुरु का नाम से आपको ये करना है, बनाना है। तो देखिए इस तरह से आपका पेस्ट की तरह हो जाएगा। लेकिन मान लो आपका ड्राई भी थोड़ा सा लग रहा है, तो क्या करो, आइदर आपके पास कोकोनट या फिर आपके पास ये है विटामिन ई। मैं डाल रही हूँ कोकोनट का वाटर का, कोकोनट ऑयल में डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स, बहुत ज्यादा हो तो 3 ड्रॉप्स, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है मैम मेरी तो बहुत ही ड्राई है, बहुत ही खींची खींची लगती है, देन यू नीड एड अ कैप्सूल 1, दिस वन, ठीक है। विटामिन ई की कैप्सूल को क्या करना है, ब्रेक करना है, विटामिन ई 1 लेनी है, उसको ब्रेक कर लीजिए, और पूरा डाल दीजिए,
और अब आता है, मैं एड ऑन इसलिए करूँ, सिंपल वाला हुआ, फिर मैंने राइस फ्लोर डाला, फिर मैंने ड्राई है इसलिए कोकोनट, और ज्यादा ड्राई है तो मैंने क्या लिया, विटामिन ई लिया। अब मान लो डिस्कलरेशन लग रहा है आपको, पैची लग रहा है, डिस्कलरेशन लग रहा है, पिगमेंट्स लग रहा है, तो आप ये ऑयल यानी कि विटामिन ए एंड ऑलिव ऑयल दोनों को मिक्स करोगे। ध्यान रखना, अगर आपके स्किन में डिस्कलरेशन है, पैची है, पिगमेंट्स है, तो ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ए कैप्सूल आप डालोगे। किस में डालोगे, ये हमारा जो बन गया है उसके अंदर डालोगे, राइट, और मिक्सअप कीजिए अच्छी तरह से। हो गया, ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा कट्टा, और ये नहीं, स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, स्मूथ। अब ये पेस्ट को आपको क्या करना है, अप्लाई, इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई, ओके, अप्लाई कर लीजिए, और फिर सर्कुलेशन में कीजिए, अच्छी तरह से सर्कुलेशन कीजिए, ठीक है, एंड देन लीव इट, रख दीजिए। सर्कुलेशन करने के बाद छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि मेरी फेस में से जो हमें लगता है कि हाँ भाई मुझे पैची, ड्राइनेस, टू मच हो रहा है, या मेरा एजिंग जैसा लग रहा है, तो वो आपको नहीं होगा। तो यूज द जिंजर ऑयल, एसेंशियल ऑयल, जो जिंजर अरोमा आता है उसका इस्तेमाल करना। अब ध्यान रखना, अरोमा में भी वेरिएशन होते हैं, कब कितना डालना है, वो बेस ऑयल कौन सा होना चाहिए वो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी अरोमा है वो बॉडी का, फेस का, हेयर का अलग अलग मेजर में जाता है, अलग अलग हिसाब से यूज होता है। तो हमने क्या किया है, जो फेस के लिए और ये है, उतना ही मुझे अमाउंट लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्लोइंग और उसका हुआ। अब मान लो आपको लग रहा है कि मैम मुझे डीपर वाला करना है, डीपर क्लिनजिंग, राइट, एक ही साथ में मैं सारा करूंगी, लेकिन योर स्किन इज पिम्पल, जैसे उनके ब्रेकआउट्स है, छोटे छोटे पिंपल जैसे है, राइट, लेकिन वो डीप क्लिंस करना चाहते, तो क्या करोगे, आपके पास ये वाला रेडी है, दही वाला है, दूध, दही और ये दाल, इसके अंदर ओट्स, याद रखना ओट्स का पाउडर मैंने बनाया हुआ है, ओट्स का पाउडर देखिए, ठीक है, ये ओट्स का पाउडर मैंने रेडी करके रखा था। जस्ट बाय ओट्स, नॉर्मल जो ओट्स बाहर मिलते हैं उसको क्रश कर लीजिए, इस तरह से पाउडर बन जाएगा। तो ये पाउडर, ओट्स का पाउडर मैंने क्या किया है, इसमें डाल दिया, ये जो हमारा पहला बेस था उसके अंदर डाल दिया। फिर थोड़ा सा मैंने हल्दी, हल्दी क्योंकि क्यों डाला हल्दी, थोड़ा सा ब्रेकआउट्स है, थोड़ा सा कटआउट है, तो उसके लिए हल्दी डाला। फिर एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आपको हमेशा साथ में रखना है, अगर कुछ भी आपको टिंगलिंग होता है। हाँ, एक बात आपको मैं बता देती हूँ, मान लो आप ये कर रहे हो, जिंजर का डाला, क्लोव का डाला, कुछ भी किया, या क्लिंजिंग कर रहे हो, सडनली यू फील टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब है ईचिंग जैसा लगने लगा, आपको रेड जैसा लगने लगा, इमीडिएटली वाइप आउट कर लीजिए, ठीक है, इमीडिएटली वाइप आउट कर लीजिए, और कपड़े में आइस को लेके पहले उसको स्टॉप कर लीजिए, और उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, ये ऑयल ले, ये एलोवेरा ले लेना है, और उससे मसाज कर लेना है, उससे मसाज, दैट्स इट, ओके। थमने नहीं देना है। अगर यू फील टिंगलिंग टू मच, या आपको लगता है रेडनेस या आग जैसा लग रहा हो, ऐसा दादा जैसा लग रहा हो, बहुत अनबेरेबल जैसा, चिली डाला हो, तो फटाक से रिमूव विद द कोल्ड वाटर, फट से फेस को स्प्लैश करके निकाल दीजिए। उसके बाद आइस क्यूब को है कपड़े में रखिए, आइस क्यूब से काम डाउन करिए, और सिर्फ आपको एलोवेरा जेल ही लगाना है, दूसरा कुछ भी नहीं लगाना, और तब आपको घर पे ही ठंडक में बैठना है, बाहर सन में नहीं जाना, बस इतना आपको ध्यान रखना।
राइट? मैम मैं आपके या- बोलते बोलते मैंने वो कॉफी एंड हनी का बनाया और लगाया, तो मेरे जैसे कॉफी मिक्स हो रहा था ना, तो ऐसे छोटा कॉफी का लंप बना। आई होप आप देख सकते हो, ऐसे हाँ, लंप बन गया है। 1 मिनट, क्योंकि अभी अंकित भाई ने मुझे स्पॉटलाइट किया ना, तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं बाहर आऊंगी ना, तब आप मुझे बता देना। ओके, और दूसरा जैसे इसको लगा दिया हम लोग, मैंने अभी जैसे अप्लाई किया है, तो जैसे मैं ऐसे इसको सर्कुलेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शायद हनी इतना चिक 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 है, मतलब वो स्टिकी है, तो इसको नहीं, ऐसे। आपको लिक्विड रखना है, ठीक है? अगर मान लो ऐसा है ना, एक काम करो, एलोवेरा जेल है आपके पास, हाँ है। डाल दो एलोवेरा जेल, ऐड करो, एलोवेरा को ऐड कर दो, ठीक है मैम। ठीक है? अब मिक्स कर दो तो लिक्विड ही जैसा बन जाएगा, लिक्विड ही जैसा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो इन्होंने बताया तो उस तरह से आपको आदत नहीं, से एलोवेरा जेल ऐड करो तो लिक्विड ही बनेगा। अगर एलोवेरा जेल भी नहीं है तो क्या कर लेना है, रोज वाटर घर पे रखना है हमेशा, ओके? रोज वाटर और एलोवेरा जेल, 2-3 चीजें वो आपके घर पे रखनी ही है। क्यों? क्योंकि रोज वाटर इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको क्या करना है, जब मैं बोलूं आपको पानी को ऐड करना है, तो पानी की जगह आप क्या ऐड करोगे, रोज वाटर ऐड करोगे, पानी नहीं ऐड करोगे, क्योंकि पानी में कोई तत्व इतना नहीं है, वो सिर्फ आपका ड्राइनेस कर। लेकिन रोज वाटर में कूलिंग प्रॉपर्टीज है, रोज वाटर में कामिंग प्रॉपर्टीज है, तो क्या करना है, आपको रोज वाटर डाल देना है और मिक्स विद द रोज वाटर कर लेना है, राइट? तो वो आपको कामिंग करेगा। तो अब हमने क्या किया, ये बेस के अंदर मैंने ओट्स डाला, फिर मैंने हल्दी दी डाला, और अब मैं डाल रही हूँ एलोवेरा, ओके? अब मैं एलोवेरा डाला, ये सब कुछ डाल दिया मैंने। और आपको क्या, अगर आप ब्रेकआउट्स वाले हो तो हनी नहीं डालोगे, ब्रेकआउट्स वाले नहीं हो देन यू कैन ऐड हनी। और आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा शाइनी और वो चाहिए, राइट? या आप ब्रेकआउट्स वाले हो, एक्ने वाले हो, ब्लेमिश वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्लोव का ऑयल है, एसेंशियल ऑयल, क्लोव का एसेंशियल ऑयल लेना है, उसको आपको 2 ड्रॉप्स, क्लोव पे ध्यान रखना, बहुत संभल के डालना है उसको, नहीं तो वो इरिटेट पहले करेगा, बाद में नहीं करेगा। वन, दैट्स इट, पहले 1 ही डालना है, ज्यादा मत डालना, नहीं तो जुम 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 करेगा। और अब मिक्स कर लो अच्छी तरह से, और अगेन 50, 60, अच्छी तरह से ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और दूसरा, अगर आपकी बॉडी में हीट है तो हाथ का इस्तेमाल मत करना, ब्रश का इस्तेमाल करना, ठीक है? बॉडी में अगर हीट है तो, क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो हाथ से, तो वो हीट गया तो ये अपना क्लींजर हीट वाला बन जाएगा, तो वो एक आपको ध्यान रखना। तो अच्छी तरह से देखो मैंने मिक्स कर लिया, अब देखो कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ यू कैन ऐड दिस वन, अच्छी तरह से लगा दीजिए फेस के ऊपर। और दिस इज लाइक वेरी स्मॉल, अभी देखो मैंने एक ही ड्रॉप लिया, लेकिन मुझे भी खुद को भी थोड़ा सा ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी स्किन इतनी ये नहीं होती है। तो ये हुआ हमारा, कौन सा हुआ, ब्रेकआउट्स। देखा था, ये 2 पानी तो डालो, निकालो ना यार, एक ऐसे घुसा के निकाले तो हो जाता क्या, बचे गए। मैम साबुन थोड़ा कम। आप बात करो, अनम्यूट करो, फिर म्यूट कर लो, नहीं तो लगेगा पानी बहुत डाला है, किसमें पानी डाला है पता ही नहीं चलेगा। सॉरी मैम। राइट? देखिए, ओके, तो स्टार्टिंग में आपको टिंगलिंग का फीलिंग आएगा, लेकिन उसके बाद टिंगलिंग का नहीं आएगा, ओके? तो स्टार्टिंग में मैंने लगाया तो मुझे फील आया टिंगलिंग जैसा, क्यों? क्योंकि मैंने भी क्लाव का नहीं डाला, मुझे है भी नहीं तो मैंने नहीं डाला, मैंने जिंजर का यूज किया हुआ है, लेकिन क्लाव का नहीं गया तो मुझे थोड़ा सा टिंगलिंग हुआ। दूसरा, जब भी आप अरोमा ऐड करते हो, जब भी एलोवेरा, मिक्स प्रॉपरली, मिक्सिंग इज अ नेसेसरी। कहाँ पे गलती होती है लोगों को, क्यों इफेक्ट नहीं मिलती, दे आर नॉट मिक्सिंग प्रॉपरली। जब आप मिक्सिंग प्रॉपरली करोगे ना, तो सब कुछ ब्लेंड प्रॉपरली होगा।
अगर मिक्सिंग ही प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, आधे पार्टिकल्स यहाँ पे, आधा ये वर्क करेगा, आधा ये करेगा। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना जलन यहाँ पे हो रही है, मुझे थोड़ा सा, वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है, इसीलिए जलन, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से एक्सफोलिएशन वाला डीपर क्लिंजर बना सकते हो। तो दिस इज क्लिंजर फॉर एवरी। तो ऐसा मत सोचो कि ये क्लिंजर हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक ध्यान रखना है, अगर ड्राई है, अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हो, हनी ऐड कर लीजिए। आप उसके अंदर ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज कर लीजिए। आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कीजिए, विटामिन ई ऑयल कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव के लिए सिर्फ आपका ओट्स ही जाएगा, ओट्स ही जाएगा, बाकी कोई ग्रेन्यूल्स नहीं जाएंगे। ओट्स जाएगा, हनी जाएगा, ऑयल जाएगा। अगर आपकी ब्रेकआउट है, ऑयल को स्किप करिए, हनी को स्किप करिए। लेकिन ब्रेकआउट के साथ ड्राइनेस के साथ फ्लेकी दिखता है, देन हनी को ऐड कीजिए। लेकिन अगर आपका ऑयली ब्रेकआउट पिंपली जैसा लग रहा है, देन यू ऐड एलोवेरा, मेन एलोवेरा। ऑलवेज रिमेम्बर, एलोवेरा के बेस के अंदर ही आप सब कुछ करोगे, बाकी नहीं करोगे। ओके, तो ये हुआ अपना। अच्छी तरह से मैं लगा देती हूँ। अब मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये जब आप करते हो, डीप करते हो, तो थोड़े टाइम के लिए अच्छी तरह से रखना। और हमेशा कितना प्रेशर देना है, बेबी को आप मसाज करते हो उतना प्रेशर, रगड़ना नहीं, वो ध्यान रखना। वापिस डैब डैब डैब। अब मान लो आपको नाइट को भी ऐसा कुछ करना है। क्या करना है आपको, कि मेरी स्किन मॉइस्चर भी रहे, नाइट पे भी अच्छी रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। आपको ध्यान रखिए, आपकी स्किन में बिल्कुल ही लाइक बहुत खिंचती है और ये होती है, तो आपको क्या उसमें करना है, एक आपको डब्बी में बना के आप रख सकते हो, एलोवेरा और हनी, दैट्स इट। एलोवेरा लिया, हनी, सॉरी, हनी लिया, एलोवेरा लिया, मिक्स कर लीजिए, मिक्स इट अच्छी तरह से 50-50-50, ठीक है, ये हो गया। अब ये आप लगा दीजिए रात को और सो जाइए, सुबह आप करोगे तो अच्छा सा हो। लेकिन मान लो आपको चाहिए कि मुझे ऐसा बनाना है कि जिससे मेरे स्किन के अंदर की डर्ट, एजिंग, ग्लोइंग की दे, तो हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर, नॉर्मल विनेगर लेना है आपको, और 1/4 जितना, बहुत कम लेना है आपको एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर लिया, अंदर डाल दिया मैं। विनेगर आपके पास जो चिली वाला वो हुआ मत लेना। देखो अब ये कैसा हो गया, पानी की तरह घोल हो गया। सिर्फ लगा दीजिए, सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई, ठीक है, और फिर रहने दीजिए। और थोड़े वक्त के बाद 10 मिनट्स से अच्छी तरह से ये कर लीजिए, पूरा निकल जाएगा आपका डर्ट। अगर आपको ब्रेकआउट्स है, अगर आपको पिगमेंट्स है, अगर ग्लो चाहिए, अगर एजिंग का लग रहा है, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। ओके, तो ये आपको क्या कर लेना है, निकाल देना, पूरा ये निकाल दीजिए, डैब डैब डैब, सी आ गया, देखा, सिर्फ डैब हमारा हो गया। ठीक है, अब मान लो
आपको क्या करना है, इसको मैं निकाल देती हूँ। मेरे पास बाथरूम में गए आप, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, आपके पास बेकिंग सोडा सबके घर पे होगा, तो आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ओके ओके, इसके अंदर एलोवेरा डाल दूंगी, अगर एलोवेरा है तो वहां पे हुए तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं, पानी होगा तो पानी, नहीं होगा तो रोज वाटर, आपके पास जो अवेलेबल हो वो, रोज वाटर डाल दिया, थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं, कि मेरा पेस्ट बन जाए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये लिक्विड ही नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसा अप्लाई कर सको ना वैसा ही बनाना है, ठीक है। ये, और ये कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे आपको लगता है ना मेरा नोज एरिया पे लग रहा है कि ब्लैक हेड्स है, यहाँ पे द लोअर पे है, कहीं कहीं पे आपको लगता है ये है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो लिक्विड जैसा बन गया है आपका, वो उस एरिया में लगा दीजिए, सिर्फ उस एरिया में लगा दीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे जहाँ पे ऑयल सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे आपका ब्रेकआउट ज्यादा हो गया है, जहाँ पे ब्लैकहेड्स ज्यादा हो गया है, जहाँ पे आपको लग रहा है ऑयल मुझे यहाँ पे तो वहां पे उस एरिया पे लगा दीजिए, और सिर्फ सर्कुलेशन, सेंसिटिव मैम स्किन एक्ने हो तो भी लगा सकते हैं ना? या ड्राइनेस करेगा, एंड वेरी ये जो हमारा ना वो ग्रेन्यूल कैसे होगा, जब स्क्रब का आएगा मैं आपको बताऊंगी कौन सा ग्रेन्यूल, ठीक है, और सिर्फ अप्लाई के लिए थोड़ा सा सर्कुलेशन के, वेरी जेंटल, क्योंकि ये आपको फील होगा, थोड़ा सा जेंटल कीजिए। अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मैम मुझे तो थोड़ा सा सर्कुलेशन नहीं हो रहा, देन यूज द एलोवेरा, दो ही इंग्रेडिएंट्स याद रखना, एलोवेरा एंड रोज वाटर, दोनों का आपको इस्तेमाल, मान लो नहीं है आपको थोड़ा सा जल रही है, एलोवेरा ले लीजिए, ओके, एंड मसाज, दैट्स इट, हो गया काम। मैम टैनिंग में भी ये यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते, अब टैनिंग के लिए बताती हूँ, ठहरो ठहरो, वेट करो, मैंने बताना अच्छा है। मैम एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। हाँ एक्ने, एक्ने, टैनिंग और पिगमेंटेशन तो समझो डॉट्स रहते हैं, तो हाँ, एक्ने और टैनिंग में क्या डिफरेंस रहता है? दोनों सेम ही होता तो होगा? ना, टैनिंग सन में जाने के बाद हम यूवीबी का इस्तेमाल नहीं होता है, यूवीए में जाता है, स्किन में जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे हाइड हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे कि मान लो मेरा ये अंदर का है, देखो व्हाइट दिख रहा है, हाँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो देखो यहाँ पे सन होता है, तो देखो थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ, जी। तो टैनिंग में क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल है, जो पिगमेंट्स अपने जो होते हैं उसके ऊपर सन के रेज पड़ते हैं, हम हाइड नहीं करते, इसीलिए वो क्या होता है, डिस्कलरेशन जैसा हो जाता है, वो आपको दिखाई देता है। आप स्विमिंग करने जाते हो, आप कहीं बीच पे गए, तब देखना टिपिकल जो आपने कॉस्ट्यूम पहना होगा वो एरिया व्हाइट रहेगा, और हाँ। दूसरा एरिया ये हो जाएगा, तो दैट इज अ टैनिंग, समझ में आए। ओके। तो अगर जी। टैनिंग है तो आप नींबू का इस्तेमाल, ब्लीचिंग एजेंट, ध्यान रखो, एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, व्हाट इज अ जी। ब्लीचिंग एजेंट, कौन कौन से अपने घर पे है, तो देखिए ये योगर्ट, दही ब्लीचिंग एजेंट है, नींबू ब्लीचिंग एजेंट है, विनेगर ब्लीचिंग एजेंट है, और आपको लगेगा अरे ये भी हो सकता है क्या, बटेटा, पोटैटो, ये भी ब्लीचिंग एजेंट है, राइट। ओके। तो ये सारे ब्लीचिंग एजेंट आप खुद यूज कर सकते हो, अपने ही इसमें यूज कर सकते हो। अब देखिए एक एक मैं बता देती हूँ, आपका क्वेश्चन था टैनिंग है, डिस्कलरेशन है, पिगमेंट्स है, तो क्या करना है आपको, जो पोटैटो है उसको आप क्या कीजिए, कट करके होल बना लीजिए, उसका रस आएगा, समझ में जी। आया, मैंने जी। ये जी। किया फोर्क से, ध्यान रखना, फोर्क, फोर्क लिया, कट हम्म। किया, फोर्क हम्म। किया,
साफ अच्छी तरह से क्या किया, फोर्क कर लिया, अच्छी तरह से उसको ये कर लिया। देखो अभी से पानी निकलने लगा। जी मैम। अच्छा ओके, अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये हो गया, बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया। और मान लो ये आपका जो एरिया है, स्किन है तो स्किन मैं अंदर डालूंगी। अब देखो घिसके मैं अंदर डालूंगी। और दूसरा ब्लीचिंग एजेंट का रिमूव करने का दूसरा है टोमेटो, टोमेटो का भी है। अब देखो ये मैं कर रही हूँ, तो अंदर से पानी भी निकल रहा है, देखो पानी भी निकल रहा है, और देखो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ पानी है, ये सॉरी सिर्फ पोटैटो है, कच्चा पोटैटो है, राइट। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इस जगह पर और थोड़ा सा ये करके इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा और करके पोक पोक करके, तो ये आपका क्या हुआ, आपका ब्लीचिंग एजेंट हो जाता है। उसी तरह से अगर पिगमेंट्स है, अगर टैन है, तो आपके पास टोमेटो है, टोमेटो का ब्लेंड करके प्योरी बना लीजिए। अब ये प्योरी में आप क्या डालोगे, ये प्योरी में आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए, थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, राइट, और मिक्स नाइसली कर लीजिए। लेकिन मुझे क्या करना है, ये प्योरी को थिक भी करना है। देन यूज द मैदा, ठीक है, थोड़ा सा मैदा अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, और फिर अपने फेस पे। लेकिन आपका क्या है, टैनिंग के साथ ड्राइनेस भी है, देन व्हाट यू ऐड, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हो तो आप विटामिन ई ऑयल यूज कर सकते हो, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो क्या होगा कि दूसरा है टी ट्री, हाँ वो मैं बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से आपका क्या होगा, वो प्योरी में करोगे ना तो लाइटनिंग की इफेक्ट देगी, टैनिंग निकाल देगा, फिर आपको ब्लेमिशेस जहां जहां हो वो उस पर फायदा करेगा, दूसरा ग्लो पे फायदा करेगा। तो ये फिर रख देना है आपको, ठीक है। तो ये जो प्योरी है, आप कुछ बना रहे हो, एग्जाम्पल आप खाना बना रहे हो तो टोमेटो काट रहे हो, तो वही आप क्या करो, छुंदा करके स्मैश कर दो और उसी के अंदर ये थोड़ा सा जो भी मिक्स करो और लगा दो, हो गया, खत्म बात। तो आप खुद देखोगे आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट दिखेगा, राइट। तो जिस एरिया पे वो होगा, अब मान लो कालापन है, हाँ, सराउंडिंग द नेक एरिया, या फिर आपका टैनिंग जहां पे है ये हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नींबू का आधा, आधा लिया है, भरा हुआ है, छिलकन, हाँ, उसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी। मैम जनरली मेरी स्किन को हल्दी डाले तो ब्लैकनेस ज्यादा आती है, ऐसा कुछ है क्या या मेरा मिथ है ना ये? ना ना, हल्दी कौन सी यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर क्योंकि लगता है, आप हम्म, क्या यूज करते हो उसके ऊपर है, एलोवेरा है, रोज वाटर है, या फिर दूध है, तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिए, वो भी ब्लीचिंग का काम करेगा। फिर आपका दही है, वो भी ब्लीचिंग का काम करेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हल्दी क्यों, क्योंकि कहीं कट हो गया हो, कहीं पे कुछ हो, वो सूदिंग का काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगा ना, इसीलिए हल्दी नहीं डाली तो मत डालिए, बट डालो तो ज्यादा अच्छा है। और अब मैं इसी के ऊपर सोडा डाल रही हूँ, इसी के ऊपर मैं सोडा डाल रही हूँ, हो गया 3। हम्म, और अब या अब जिस जगह पे आपको है, अब कहाँ पे बताऊं, जिस जगह पे, स्क्वीज इट एंड अप्लाई, स्क्वीज इट एंड अप्लाई, सी जहां जहां पे स्क्वीज इट, अच्छी तरह से, देखिए अच्छी तरह से, आपका जिस एरिया में ये स्क्रबिंग भी हो रही डिस्कलरेशन के लिए है ना मैम? है, डिस्कलरेशन, टैनिंग, ब्लैकपन, मैंने जो बोला ना आपको, एल्बो में ब्लैक हो या फिर नकल में ब्लैक हो, यहाँ पे ब्लैक हो, ब्लैकिश हाँ। कहाँ पे हो बैक पे, सबके लिए है। और इजीएस्ट मेथड,
ये है, टोमेटो है, इसी तरह से आप, बट दिस इज द बेस्ट, ये हमने रिजल्ट देखा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इसका तो हमने देखा है, टोमेटो का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर और आपको मैम आइस के एक्चुअली अंदर, मेरे क्या है ना बैक में नेक पे जैसे मैं खुद ही स्क्रैच कर लेती तो निशान हाँ बहुत हो हाँ जाते हाँ हैं। तो ये हाँ, नींबू वगैरह लगाऊंगी तो थोड़ा फिर जलन काफी नहीं तो रहेगी। एलोवेरा, 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 हल्दी और बेकिंग सोडा हाँ डाल के लगाऊं? हाँ, एलोवेरा, एलोवेरा, ओके। और उसके अंदर आपको क्या क्या, एलोवेरा का बेस रखिए आप हमेशा। अपनी स्किन को ड्राई मत कीजिए, क्या हो रहा है आप अपनी स्किन को ड्राई हो जाए इसलिए ईची होता है, जैसे ही ईची होगा ना आप खुजलाओगे, खुजलाओगे तो आप नाखून से करोगे, तो आपको क्या करना है, बस वही करना है। बस इस तरह से आपने क्या किया, रख लिया, फिर हाथों से और इससे कर दिया। देखिए अभी टैन हो रहा है, ये सिर्फ अच्छी तरह से कर लिया, देखो। और अब लग रहा है कि बहुत ड्राई जैसा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, ऑयल ले लीजिए, हनी ले लीजिए। सी हमारे पास कुदरत ने सब कुछ दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर जाके ऑयल लगा लीजिए। ओके, दैट्स इट। और फिर आप साफ कर लीजिए। इनको 5 मिनट अपन ऐसे मसाज हाँ, किए तो इनफ हो मैंने जाता है मुझे मैम? तो निकालना पड़ा इसीलिए बहन, नहीं तो क्या होगा, मेरा तो हाथ वैसा का वैसा हो जाएगा। अब देखो मैंने सिर्फ, आप देखिए ये जो हमने लगाया ना, उससे एक तो मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई, देखो सी जी। कुछ फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, शाइन कर रहा है और थोड़ा हाँ फेयर लग रहा है जैसे हाँ, शेडो। देखो क्यों। और मैंने जब हाथ वॉश किया, ये किया ना, एक स्मूथ हो गई मेरी स्किन। ओके, जो अभी आप लोग बोलते हैं ना, हमेशा सब लोग बोलते हैं समर में हमारा ड्राई दिखता है, हाँ हमारा ड्राई फीलिंग होता है, तो बस आप क्या कर सकते हो, यही इस्तेमाल। अगर आपको नींबू से नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, नींबू को स्क्वीज कर दीजिए ना। क्या क्या, एक तो बेसन लिया, देखो मैंने मेरे बाथरूम में ये रखा ही होता है, बेसन है इसके अंदर, सोडा है इसके अंदर, बेकिंग सोडा और बेसन रखा है, ये आप अपने बाथरूम में रखा कीजिए, ठीक है। और ये दोनों में रोज वाटर, तो मैंने है ना एक बॉटल में मैंने एलोवेरा भी रखा हुआ है, रोज वाटर भी रखा है बाथरूम में। क्या करती हूँ, डाल दिया, फेस पे लगा दिया, फिर ब्रश कर लिया। मैं सब कुछ मल्टी में काम करती हूँ, एक एक में काम नहीं करने का, जस्ट अप्लाई करो। क्यों एलोवेरा, जो आपका क्वेश्चन था ना कि मुझे टिंगलिंग होता है, स्क्रैच हो जाते हैं, तो वो एलोवेरा सपोर्ट करेगा। लगा दिया आपने अच्छी तरह से, फिर आपका ब्रश हो गया, फिर अच्छी तरह से बस थोड़ा सा सॉफ्ट, अगर आपको लग रहा है ये ड्राई हो गया, देन ऐड द एलोवेरा, एलोवेरा या रोज वाटर का ऐड करो, हाथ में लो और मसाज करो। ध्यान जी। रखो ड्राइनेस नहीं चाहिए। किसी का क्या ये ड्राई हो जाता है फिर भी रगड़ते रहते, नहीं ऐसा मत करो। अब क्यों नहीं रगड़ना है, देखो आपके पास सिल्क की साड़ी है, अभी आपने पॉलिश की है, अच्छी सी इस्त्री की है, ठीक है। अब कोई छोटा सा ऐसा बॉल भी गिरता है या कुछ ऐसा गिर भी जाता है तो वो कैसी हो जाएगी, सिल्क की साड़ी ऐसी हो जाती है ना, सेम सल आ सेम। जाती है। हाँ, सेम टू सेम हमारी स्किन में ना ऐसे कैसे है, लेयर्स है, ठीक है। तो आप जब रगड़ते हो तो सबके ऊपर इफेक्ट होती है, सबके ऊपर इफेक्ट होती है, इसीलिए रगड़ना नहीं है, इसलिए खींचना नहीं है। लोग क्या ड्राई होने तक रखने देते, नहीं ये गलती मत करना, ड्राई होने तक नहीं रखना। अगर मान लो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना, एक एलोवेरा, ऐसे एलोवेरा हाथ में लीजिए और फिर उसको निकालने के लिए एलोवेरा का यूज कीजिए। ओके, तो अच्छी तरह से अपने घर पे हो बाहर हो तो एलोवेरा को अच्छी तरह से आप लगा दीजिए। अगर मान लो आपको एलोवेरा का प्लांट आपके घर पे बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी तरह से है, उसको निकालिए और उसके बाद वो ही निकाल के फेस के ऊपर ऐसे ही लगा दीजिए, ऐसे ही, या स्किन के ऊपर वो प्लांट को ही ऐसे करके, और फिर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रात को छोड़ दिया, दोपहर को छोड़ दिया, और फिर आप मुंह जब वॉश करोगे ना, इतना सुपर्ब लगता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर ही आपको अगर चाहिए कि मुझे थोड़ा सा ये है मेरा क्रीम बेस किया तो एलोवेरा डाल दिया, तो रिमेम्बर एलोवेरा है वो क्रीम बेस बन जाएगा।
अगर मैं ऑयल डालूंगी तो मुझे ड्राई स्किन की तरफ जाएगा, हनी डालूंगी ड्राई एंड ऑयली की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही पेस्ट में मुझे रखना है। उसी तरह से मान लो मुझे मल्टी ऐसा पैक बना के रखना है, तो क्या क्या ऐड करोगे? बेसन लिया, अब ध्यान रखो ये है मल्टी ऐड के लिए, मल्टी के लिए बेसन लिया, फिर उसके अंदर मैंने राइस फ्लोर डाला, सॉरी ये है राइस फ्लोर डाला, बेसन डाला, एक एक चमची का रेशियो बना दीजिए। फिर कॉफी डालो, कॉफी डाला 1 चम्मच, ओट्स डाला 1 चम्मच, ओके। फिर ये है यष्टिमदी पाउडर, मुलेठी, ओके, मुलेठी को डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए। दूसरा, जिनको जैसे मैंने अभी सुबह बात की थी, जिनको क्लींजिंग करना है किडनी का, लीवर का या स्किन को अच्छा रखना है, रोज मुलेठी का 1 चम्मच मुलेठी का पानी में डाल के पी लो एवरीडे। आपका हार्मोन भी बैलेंस है, जो आपका था ना उनका नाम ये, तो हार्मोन भी बैलेंस हो जाएगा। तो मुलेठी का आप इंटेक भी कर सकते हो मुलेठी लगाने के लिए। ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उसमें लाइक्रोज करके नाम लिखा होता है, मुलेठी नहीं लिखते, लिक्रोज करके लिखा होता है। तो ये है मुलेठी, तो मुलेठी डाल दीजिए, तो एक पाउडर बेस में बना दीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह से पाउडर बेस में वो डाल देना है। मुलेठी डाला, बेसन डाला, राइस फ्लोर डाला, ओट्स डाला, फिर ये ड्राई बनाइए। और उसी के अंदर एक क्ले आता, व्हाइट मुल्तानी मिट्टी हो, ये क्ले है व्हाइट क्ले, ओके। और दूसरा आता है रेड क्ले, ब्राउन क्ले जैसा आता है, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये जो है ना, उसको व्हाइट क्ले को अंदर डाल दीजिए, अंदर व्हाइट क्ले को भी डाल दिया, तो ये आपका पाउडर बन जाएगा, ठीक है। और ये पाउडर को आप शेक करके रख लीजिए अंदर। और अगर अच्छा चाहिए तो रोज के पेटल्स आते हैं, रोज के पेटल को भी अंदर डाल दीजिए, मस्त रगड़ के रखें, तो ये आपका एक है ना आयुर्वेदिक फेस वॉश बन जाएगा आपका। अब क्या करना है, जब भी आप लेते हो हाथों में मत लेना, एंड टेक अ बाउल। मैंने बाउल में लिया ये पाउडर को, जो मैंने अभी बोला आपको, कुछ मैंने डाला कॉफी, मिट्टी, सॉरी ये मुलेठी, ओट्स, मैम ओट्स को पाउडर ही में मतलब मिक्सी में पीस के पाउडर कर लेना। पाउडर ओट्स को पाउडर, देन राइस फ्लोर, मैदा जो भी आपके पास, ठीक है। देन व्हाइट क्ले डाल दिया, ओके। और अच्छी तरह से मैंने, देखो ये पाउडर बन गया, अच्छी तरह से रोज पेटल डाल दिया। अब देखो ये आपका है ना पाउडर बन गया अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए, अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी हो वो भी आप, तो ये देखिए इस तरह से आपको पाउडर रखना है, पाउडर रखना है, ठीक है। अब ये पाउडर में आपको जो मिक्स करना है, तो क्या करना है कि मैंने मान लो ये लिया है, इसके अंदर क्या करूंगी मैं, हनी, मेरे पास दूध था, सुबह दूध निकाला था तो वो दूध ले लिया, लैक्टिक एसिड का, नींबू था, अभी हमने नींबू का इस्तेमाल किया था, यस, नींबू को स्क्वीज करी मैं 5 ड्रॉप्स, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स कर रही, देखो मस्त पैकी, देखिए कितनी बार, 50 to 60, लम्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अब मुझे सूदनिंग बनाना है इसको, देन आई ऐड द लेवेंडर एसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप्स। अगर मेरे स्किन में एक्ने प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर मैं टी ट्री या फिर मैं क्लव, दोनों पैकी एक को डाल दीजिए, 2 ड्रॉप्स।
आइदर आपको लग रहा है कि मुझे ब्लैमिशिंग है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंट्स है, मेरा सैगिनेस हो रहा है, देन जिंजर ऑयल, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए, देन ऐड द कैम्फर ऑयल डाल दीजिए। और फिर मस्त ऐड किया ये सब कुछ। देखिए मैम कैंपर ऑयल की जगह अगर हम आधा कपूर ऐसे चूरा करके डाल के ऐसे उसको मिक्स करें तो कर हो सकते जाएगा? हो, कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैम्फर का हो तो अच्छा रहता है, वो लिक्विड होता है तो फटाक से मिक्स हो जाए, लेकिन कैम्फर भी इट्स ओके है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, राइट। तो कैम्फर को भी डाल दिया, तो एक है ना जो भी बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर और बाहर, और ये मान लो मुंह में भी यूं करके लगाते हो चला गया, कोई टेंशन मत करो। क्यों? ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं शरीर के अंदर डालते हैं, तो कोई चिंता नहीं। तो मान लो मैंने क्या किया, ये सबको ऐड किया अच्छी तरह, ऑयल डाला हमने, ऑयल जो भी आपके पास है एसेंशियल ऑयल है, तो इस तरह से बन गया। और अब हमें क्या करना है, लगा देना है, रख दीजिए, लगा के रख दीजिए, घिस अभी मत करना सर्कुलेशन, अभी नहीं करना है सर्कुलेशन, रखो 5 मिनट के बाद जस्ट सर्कुलेट। तो ये क्या होगा, डीपर सबके लिए हो जाएगा, अपना डीपर क्लिनजिंग हो जाएगा, जस्ट सर्कुलेट। ओके, समझ में आ गया? दैट्स इट। और फिर वॉश कर लीजिए, डन। तो ये डीपर वाला हमारा रहेगा। देखिए हो गया, मैंने सिर्फ इतना ही लगाया, सी द डिफरेंस, डैब डैब डैब, हो गया, राइट। अब हम चलते हैं वहां पे, तो यहाँ का मैं क्लोज कर रही हूँ, वहां पे मिलती हूँ मैं। चलिए, ओके, तो आपको समझ में आया यस मैम। मैंने क्या किया? मैम मुझे एक दो चीजें पूछनी थी कि हाँ। जैसे कुछ कुछ चीजों को हमें सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देना है और Yes, कुछ कुछ yes. चीजों को थोड़ा मसाज करना है। यस, हाँ, जब आप थोड़ा सा सर्कुलेशन में, पाउडर हमने बनाया, जैसे देखो कॉफी है, हाँ, उसको वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में वक्त लगता है, ध्यान रखो। तो क्या करना है, कॉफी है, राइस फ्लोर है, जो हमने अभी सारे इंग्रेडिएंट्स है वो है, तो उसको क्या है, तोड़ने में वक्त लगता है, फैलने में। तो वो हमें थोड़ी देर के लिए रखना है, और उसके बाद 5 मिनट के बाद सर्कुलेशन करना है। लेकिन जो फटाक से करने वाला, जैसे मिल्क है, देन अपना दही है, फिर ओट्स है, फिर जो जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, हनी है, एलोवेरा है, अपना एसिड यानी कि एप्पल साइडर विनेगर है, वो सबको हमें फटाक से कर लेना है। बेकिंग सोडा है, हमें फटाक से करना है, उसके लिए देर नहीं करनी, राइट। वो Okay, करके yeah. 5 मिनट, और क्लिनजिंग का 5 to 8 मिनट होता है क्लिनजिंग, फॉर क्लिनजिंग। ओके मैम। ओके, और फिर वो जो नींबू वाला, टोमेटो वाला एंड पोटैटो वाला, लेमन, पोटैटो एंड टोमेटो, ये 3 को आपको सिर्फ ऊपर जिस जगह पे आपको हुआ है उस जगह के लिए ट्रीटमेंट के रूप में, नॉट फॉर द होल फेस, होल ऐसा नहीं, जहां पे आपको लग रहा है उसी एरिया पे करना, वो स्पॉट ट्रीटमेंट बोला जाता है, तो वो आपको वैसे करना है। ओके, ओके मैम। हाँ, और आप ये एसेंशियल एरोमा ऑयल डीपर में जाना हो तो उसका पूरा अलग आता है कि बेस ऑयल के अंदर एरोमास डालो, बस इतना ही होता है इसके अंदर। उसमें आपको ये सब में आप अगर डालते हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी क्या हो गया, राइट। तो वो ऐसा होता है, तो आप लोग
लोग अब ये ट्राई कीजिए इसमें से, और फिर कल मुझे बताओगे कि किसमें क्या। अगर आपको लगता है तो एक साइड ये लगाया, एक साइड ये लगाया, एक हाथ में ऐसा, तो थोड़ा सा ना आपको खुद को पता चलेगा, हाँ मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया मैंने, फिर और फिर जिसके थोड़ा सा अच्छी जगह, और उसके बाद आपको टैपिंग करना है और अप्लाई द मॉइस्चराइजर, यानी कि एलोवेरा से आपको किफायत है। ठीक है, तो ड्राई बना के रखिए, फिर आप इंस्टेंट हो तो लिक्विड बना के रखिए, इस तरह से आप बना के भी रख सकते हो, तो वो भी आपको इफेक्ट मिलेगी, उसकी भी आपको इफेक्ट मिलेगा। एवरी टाइम मैं रात को एलोवेरा है, हनी है एंड एप्पल साइडर विनेगर, तीनों को मिक्स कर दिया, फ्रीज में रख लिया, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो हो जाता है। ओके, ओके मैम। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, तो अगर हो गए तो हम कल स्टार्ट कर लेंगे डिस्कशन, और फिर चेक कर लीजिए, अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट लग रहा हो, तो फिर आप मुझे कल बताइए। ओके मैम। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। यस मैम। Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Wonderful session. Bye. Thank you so much.